السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد انواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 14واں پارہ سورۃ النحل کی آیات نمبر 14 تا 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه خلیة تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستكبرین. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس میں سے
गहना यानी कि जेवर निकालते हो, जिसे पहनते हो, और तू इसमें कश्तियाँ देखे कि पानी चीर कर चलती हैं, और इसलिए कि तुम उसका फजल तलाश करो और कहीं एहसान मानो। और उसने ज़मीन में लंगर डाले कि कहीं तुम्हें लेकर ना कांपे, और नदियां और रस्ते कि तुम राह पाओ, और अलामतें और सितारे से वो राह पाते हैं। तो क्या जो बनाए वो ऐसा हो जाएगा, जो ना बनाए तो क्या तुम नसीहत नहीं मानते? और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो उन्हें शुमार ना कर सकोगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और अल्लाह जानता है जो छुपाते और जाहिर करते हो। और अल्लाह के सिवा जिनको पूजते हैं वो कुछ भी नहीं बनाते, और वो खुद बनाए हुए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं हैं, और उन्हें खबर नहीं लोग कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा माबूद एक माबूद है, तो वो जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते उनके दिल मुनकिर हैं, और वो मगरूर हैं। फिल हकीकत अल्लाह जानता है जो छुपाते और जो जाहिर करते हैं। बेशक वो मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। और जब उनसे कहा जाए तुम्हारे रब ने क्या उतारा, कहें कहें अगलों की कहानियाँ हैं कि क़यामत के दिन अपने बोझ पूरे उठाएं, और कुछ बोझ उनके जिन्हें अपनी जहालत से गुमराह करते हैं। सुन लो, क्या हम बुरा बोझ उठाते हैं? बेशक उनसे अगलों ने फरेब किया था, तो अल्लाह ने उनकी चुनाई को नींव से यानी कि तामीर को बुनियाद से लिया, तो ऊपर से उन पर छत गिर पड़ी, और अजाब उन पर वहां से आया जहां की उन्हें खबर ना थी। मौजूद नाजरीन, यहाँ तक इसका तर्जमा अख्ताम पजीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से, यानी गहरो मरजान पहाड़ी पहाड़ों के अपने मकासद की तरफ बनाए, जिनसे तुम्हें रास्ते का पता चले खुश्की और तरी में, और उससे उन्हीं रास्ते और किबले की पहचान होती है। इन तमाम चीज़ों को अपनी कुदरत व हिकमत से, यानी अल्लाह ताला किसी चीज़ को और आजिज़ व बेकुदरत हो, जैसे कि बुत तो आकिल को कब सजावार है कि ऐसे खालिक व मालिक की इबादत छोड़कर आजिज़ व बेख्तियार बुतों की परस्तिश करे, या उन्हें इबादत में उसका शरीक ठहराए। चे जाए कि उनके शुक्र से अदा बरा हो सके, कि तुम्हारे अदाए शुक्र से कासिर होने के बावजूद अपनी नेमतों से तुम्हें मारूम नहीं फरमाता। तुम्हारे तमाम अक़वाल व अफ़आल यानी बुतों को बनाए क्या के और अपने वजूद में बनाने वाले के मोहताज, और वो बेजान। तो ऐसे मजबूर, बेजान, बेइल्म माबूद कैसे हो सकते हैं? इन दलाइल कातिया से साबित हो गया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो अपनी ज़ातो सिफ़ात में नज़ीरो शरीक से पाक है, वादानियत के हक़ ज़ाहिर हो जाने के बावजूद उसका इत्तिबा नहीं करते। यानी लोग उनसे दरियाफ़्त करें कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो यानी झूठे अफ़साने कोई मानने की बात नहीं। शान नज़ूल ये आयत नज़र बिन हारिस की शान में नाजिल हुई। उसने बहुत सी कहानियाँ याद कर ली थी। उससे जब कोई कुरान करीम की निस्बत दरियाफ़्त करता तो वो ये जानने के बावजूद कि कुरान शरीफ किताब मुअज्जज़ और हक़ व हदायत से ममलू है, लोगों को गुमराह करने के लिए ये कह देता कि ये पहले लोगों की कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ मुझे भी बहुत याद हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों को इस तरह गुमराह करने का अंजाम ये है, गुनाहों और गुमराही व गुमराहगिरी के, यानी पहली उम्मतों ने अपने अम्बिया के साथ, ये एक तमसील है कि पिछली उम्मतों ने अपने रसूलों के साथ मक्कर करने के लिए कुछ मंसूबे बनाए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खुद उन्हीं के मंसूबों में हलाक किया, और उनका हाल ऐसा हुआ जैसे किसी कौम ने कोई बुलंद इमारत बनाई, फिर वो इमारत उन पर गिर पड़ी और वो हलाक हो गए। इसी तरह कुफार अपनी मकारियों से खुद बर्बाद हुए। मुफस्सिरीन ने यह भी जिक्र किया है कि इस आयत में अगले मकर करने वालों से नमरूद बिन किनान मुराद है, जो ज़माने इब्राहीम अलैहिस्सलाम में रुई ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह था। उसने बाबुल में बहुत ऊंची एक इमारत बनाई थी जिसकी बुलंदी 5000 गज थी, और उसका मकर ये था कि उसने ये बुलंद इमारत अपने ख्याल में आसमान पर पहुंचने और आसमान वालों से लड़ने के लिए बनाई थी। अल्लाह ताला ने हवा चलाई और वो इमारत उन पर गिर पड़ी और वो हलाक हो गए।
मज़े नाज़रीन, आज तक का यहाँ तिलावत तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक, हुज़ूर की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारियों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला वाला मकाम अता फ़रमाए। और आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख़्वास्त है कि ख़त्म नबूवत के सदक़े इस उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एक फ़रीज़ा आयद होता है कि हम इस कुरान पाक के पाक मुक़द्दस मैसेज को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए अपना-अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला आपको कुरान पाक को सुनने, समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने और इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपसे ये सलाह है कि आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, अपने बच्चों को, अपने अक़रबा को, जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाएँ। और पहुँचाने का तरीका ये है कि आप इसको ज़रूर लाइक, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और के बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे और इस्तेफ़ादा हासिल करें। और अल्लाह ताला दिन क़यामत इस प्रोग्राम के सदक़े आपको अल्लाह ताला के दरबार के नबूवत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।